अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अभी इस वक्त मैं बाग वाली पुली वागा एहसन टाउन एक इलाका है, वहाँ पे मौजूद हूँ। ये बाटापुर से थोड़ा सा पीछे है, वागा बॉर्डर के करीब ये इलाका लगता है, मनामा और बाटापुर के दरमियान में। ये जो इलाका है, इस इलाके में ये पसमानदा इलाका है, जैसा कि आपको थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा होगा कैमरे में मेरे पीछे और मेरे दाएँ बाएँ भी। ये थोड़ा सा पसमानदा किस्म का इलाका है। यहाँ पर ईज़ी एक्सेस किसी भी ओहदे की नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे गैर कानूनी काम की शराबी थोड़ी सी ज़्यादा है। आज हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें पता चला कि यहाँ पे एक इस तरह की फैक्ट्री मौजूद है या इस तरह का एक गोदाम मौजूद है जहाँ पे गैर मयारी अचार, मुरब्बा, केचप और इस तरह की दीगर अशिया बनाई जाती हैं। पता नहीं क्या क्या। इलाके में आ गए हैं, फूड अथॉरिटी की टीम से भी रब्ता कर लिया है। कोशिश करते हैं उस फैक्ट्री के या उस गोदाम के अंदर जाने की और जाके देखने की क्या वाकई इस तरह की गैर मयारी चीज़ें हमें देखने को आज के प्रोग्राम में मिलती हैं या नहीं। अंदर की कम की होंदा है, अंदर की चीज़ बनदा? अचार चूर बनदा यार, अंदर अचार बनदा। अच्छा, अचार बनदा अंदर? मैं नहीं पता, मैं नहीं वेख्या, कसम ले ला। मैं नहीं अचार बनदा अंदर? गालबन मेरा ख्याल है यार। नहीं मिनट मेहरबानी। अच्छा नहीं अचार बनदा, चलो जी। गालबन चार ही बनदा यार। ओ महल्लेदारा को उस्ताद है, तुसी भी ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਦੀ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਸਮ ਲਾ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ? ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਥਾਣੇ 'ਚ? ਮਨਾਵਾ 'ਚ ਯਾਰ। ਥਾਣੇ ਮਨਾਵਾ 'ਚ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਕੀਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਕੀਲ ਨਾਂ? ਅਕੀਲ ਭਾਈ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਡਾ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਬਣ ਜੇ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਜਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ? ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। अच्छा जी, ये 1-2 नंबर झूठे पुलिस मुलाजिम जो अपने आपको बता रहे थे भाईजान, वो तो खैर यहाँ से अब फ़िलहाल भाग गए हैं, साथ उनके दूसरे साथी भी भाग रहे हैं। चला यार। और ये और चलने इधर आओ, केड़ी पुलिस के कोल जाना जी? आप पुलिस कोल ही चलने हैं। हाँ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ? तुसी भी मुलाजिम? ਔਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ? पुलिस केड़ी कोल आंदे पे? चलिए ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ। नहीं पुलिस क्यों आई? पुलिस का काम ही नहीं है। ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ये बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਯਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ? ਆਹੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਲੱਭ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਯਾਰ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਸਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਕਸਮ ਦਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਲਿਹਾਜ਼, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ? ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਸਮ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੇਟ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ? हाँ हो गया। चलो बस जी। पुलिस मुलाजिम है जी भाईजान, मनामा पुलिस स्टेशन से कह रहे हैं कि मनामा पुलिस स्टेशन में मैं होता हूँ पुलिस मुलाजिम, और मैं अंदर गया हूँ उनके मुताबिक। वो कह रहे हैं, इनके साथी जो साथ मौजूद हैं ये भी कह रहे हैं कि मेरे साथी अंदर गए हैं, मैं अंदर नहीं गया। और जो अंदर गए थे उन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी बता दिया कि हाँ जी अंदर अचार बन रहा है। अब मज़ेदार बात यह है कि जैसे हम यहाँ पे आए थे, ना भी कैमरा निकाला हमने, ना माइक निकाला, लेकिन शायद मुझे पहचानते थे, मुझे देखते साथ उन्होंने दरवाजे को ताला लगाया और दौड़ लगा दी है। ये जो 2 अफराद यहाँ से थे, जो एक पुलिस वाले भाईजान अंदर से निकले थे, इन्होंने भी दौड़ लगा दी है।
और जो अंदर फैक्ट्री मालिक मौजूद थे उन्होंने भी दौड़ लगा दी। अब दो वजूहत हो सकती हैं, पुलिस वाले भाई अंदर क्या लेने आए थे, ये इस सवाल का जवाब आपके पास खुद ही होगा और आप खुद ही या मनावा पुलिस स्टेशन में आकर इनको ढूंढ के इनसे ले लें, या फिर आप खुद समझदार हैं इसका जवाब लेने के लिए। फैक्ट्री के अंदर चलने की कोशिश करते हैं, जाके देखते हैं हमें कुछ देखने को मिलता है या नहीं। अच्छा, जहाँ पे इनका वेयर हाउस बना हुआ है या गोदाम बना हुआ है, उस गोदाम के साथ एक हवेली है, किसी ने अपने जानवर रखे हुए हैं। वहाँ से बताया गया है कि पीछे से ही दिखाई देता है। उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी हवेली के अंदर से आगे जाने की कोशिश करते हैं और आगे जाके देखने की कोशिश करते हैं कि हमें आगे कुछ देखने को मिलता है या नहीं मिलता, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे की सूरत हाल पता चलेगी। अंजुम, हमारे कैमरा मैन अंजुम, थैंक यू यार, आप हमारे साथ यहाँ पे ऊपर देख के ध्यान से। अच्छा, ये अब इस छत पे आ गए। इस छत के साथ से इनका जो सारा गंदा स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमें देखने को मिलता है। इनके मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने में दी है वह। हाँ जी, इस तरफ आ जाएं, ज़रा मेरे साथ ही आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। ये गंदे गले हुए, गले सड़े गंदे आम, अंदर ही उसके सारी गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी। और ये बाकी सारे ड्रम जितने कवर्ड हैं, इन सब ड्रमों में भी यही मौजूद होगा गालिबन। और ये इनका वेयर हाउस है, यहाँ पे इन्होंने चीज़ें स्टॉक की हुई हैं। इसका आइडिया मुझे बिल्कुल नहीं है। वो लसूड़े भी पड़े हुए हैं और बाकी तमाम चीज़ें भी पड़ी होंगी, लेकिन अभी कवर्ड है, नीचे तक हमारी एक्सेस नहीं है। यहाँ से सीढ़ी कोई नहीं है, एक्सेस होती है सीढ़ी होती है तो नीचे जाके ज़ाहिर है इसको खोल के भी देखते। ये सामने जो टेंट लगे हुए हैं रेड कलर की, ये फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में वो मौजूद है सामान सारा जो जहाँ पे अचार बनता है। सिर्फ अचार का तो हमें सबूत भी मिल गया। अचार की इन्फॉर्मेशन के अलावा हमें यहाँ पे मुरब्बे और केचप की भी इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन अभी उसमें कुछ सच्चाई हमें देखने को नहीं मिली है। मुरब्बा या केचप बनता है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। अचार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल गई है। सामने वाली फैक्ट्री वालों ने जी बड़ा अजीब सी सिचुएशन अभी बनाई है। जैसे हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ हमारे आने के बाद हमें देखने के बाद या तो इनके पीछे कहीं मुखबर हैं, लेकिन हम प्राइवेट गाड़ी पे आए थे तो गाड़ी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। गालिबन या मेरा चेहरा पहचाना है, जो कि मुझसे गलती हुई, मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, या मेरा चेहरा पहचाना है, या इस तरह का कोई और काम किया है जो देखने के बाद ये इन्होंने फ़ौरन से फैक्ट्री बंद की है। एक शख्स यहाँ से पीछे पैदल उस तरफ को दौड़ लगा दी उसने, और दो शख्स मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, जिनमें से एक ने अपने आप को पुलिस मुलाजिम बताया और दूसरा शख्स कुछ भी बता नहीं रहा था, लेकिन उसने इस बात को सेकंड किया कि हाँ जी, जो मेरे साथ मौजूद था वो पुलिस मुलाजिम ही है। पुलिस मुलाजिम ने कहा कि मनावा पुलिस स्टेशन में मैं होता हूँ, और से किसी का रेफरेंस भी दिया था किसी शख्स का। मैं उन्हें नहीं जानता, मेरे लिए काबिल एहतराम है अगर वो सहाफ़ी हैं तो, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अगर वो किसी निजी चैनल से किसी का रेफरेंस दे रहे हैं तो वो भी इस गैर कानूनी काम में इनके सपोर्ट नहीं करते होंगे। अब एक पुलिस एहलकार का एक गैर कानूनी फैक्ट्री से, जहाँ पे गैर मायारी सामान बनाया जाता है, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फूड अथॉरिटी ने यहाँ पे पहले भी कार्रवाई की है। इस तरह की फैक्ट्री में एक पुलिस एहलकार चलती फैक्ट्री में काम चल रहा है, काम हो रहा है, वहाँ से अंदर से निकला है, क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। ज़ाहिर है वो वर्दी में नहीं था, सिविल कपड़ों में था, लेकिन फिर भी हमने उसे बदतमीज़ी कोई नहीं की। ना हमारा ये काम है बदतमीज़ी करना। उसे पोलाइटली रिस्पेक्ट से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं सच बता दे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया उसने, और वहाँ से भाग गया किसी का रेफरेंस दे के। खैर, जितना हम रिकॉर्ड कर सकें कैमरे में उतना हमने रिकॉर्ड किया है। और भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं आप ऊपर आ सकते हैं? लाएँ हाथ पकड़ाएँ मुझे। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं साथ? हाँ जी, ये साथ में। हाँ जी। ये किन का है वेयर हाउस, क्या बनता है यहाँ? ये वो सामने वाले हैं। अच्छा। इनका मुरब्बे वाली फैक्ट्री थी पहले, लेकिन अब अचार वाली बन गई है। ठीक हो गया। ठीक है ना। कितनी देर से बना रहे हैं अचार? तकरीबन इनको हो गया 10 साल से पीछे तकरीबन फैक्ट्री बनी है टोटल। अच्छा, नहीं, अचार कब से बना रहे हैं मुरब्बे के बाद? अचार मुरब्बे के बाद ये बना रहे हैं तकरीबन 2 साल हो गए हैं। अच्छा, 2 साल से बना रहे हैं। 2-2.5 साल। ये जो साथ पड़ा हुआ है, यही वाला अचार यहाँ बनता है? हाँ जी, ये तकरीबन ये ईद से पहले 1 हफ़्ता पहले टीम आई है, वो सारा कुछ लेके गई है, इसका सब कुछ करके गई है। इसकी फिर गंदगी वही है, वही मामला है। स्मेल देखें आप, अंदाज़ा लगाएं स्मेल से। ऐसे ही स्मेल यहाँ तक आ रही है सर, आप बिल्कुल साथ रहते हैं। अच्छा, स्मेल के अलावा यहाँ से जब फंगस पैदा होती होगी, यहाँ से जो बैक्टीरिया पैदा होता होगा, जो जरासीम पैदा होते होंगे, वो देखें जिस तरह की मक्खियाँ हैं सर, ये इस तरह की गंदगी पे गलीज़ जरासीम लेके मक्खियाँ, ये छोटे छोटे आपके माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे हैं, इन तक भी आती होंगी। बहुत ज़्यादा परेशान है, इतने परेशान है कि जी जितना भी एरिया ना, जितना भी इलाका है,
ये सब आप अभी बाहर निकले आपको हर बंदा बोलेगा यही कि हम इससे बहुत ज़्यादा तंग है, ज़रूर से ज़्यादा। बिल्कुल, मुझे एल इलाका नहीं बताया मैंने खुद इसको पता नहीं कितनी दफ़ा सील करवाया है, लेकिन वो फिर ओपन हो जाती है। ये जो लास्ट आई थी ना टीम, जो लास्ट आई है टीम ये ईद से पहले, उन्होंने बोला जी इस दफ़ा जो बैक्टीरिया निकला है ये लेके हम जा रहे हैं, ठीक है ना, इसका 4000 kg था ना जो, वो हमने डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है ना। अगर 4 टन वाकई किया था, ये मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी ये बात सच है, ऐसा हुआ था। अगर इसके बाद फिर इसका ऐसा ही सिस्टम हुआ, ऐसा ही गलाजत भरा हुआ, सर इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर हम इसे पक्का सील कर देंगे। ये मुझे किसने बोला है, ये मैंने उनको जो उनका जो हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन पे फ़ोन किया था, उनसे मैंने बातचीत कर रहा था। नुमान साहब को यहाँ हेल्पलाइन पे वो फ़ोन उठाते हैं, फोर्ड अथॉरिटी वाले। उन्होंने बोला जी अगर दोबारा इस पर कुछ साबित होता है, कोई मामला तो होता है, तो ये दोबारा ओपन नहीं होगी। ठीक हो गया, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आप अभी अंदाज़ा लगा लें, ये बाहर दुकान है, इसके नीचे दुकानों के अंदर भी रखा है। हम इतनी दूर खड़े हुए हैं, यहाँ तक देखें किस तरह की मक्खियाँ आ रही हैं, तो नीचे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने मतलब बेशुमार दफ़ा सील करवाई है, एक दफ़ा नहीं। लेकिन आते हैं जो भी मामला हैं उनके, वो अपने करके वो सील भी करते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर ओपन हो जाती है। यानी ये निडर हो गए हैं। हाँ, नहीं अब कोई डर नहीं है, अब कोई डर सील करके गए हैं, मैं बताता हूँ, सील करके गए हैं। पीछे से इन्होंने डीजल खुद ही कर उन्होंने वो ये रास्ता छोड़ गए थे, ये पौड़ियों वाला, एक पौड़ियों वाला रास्ता है, ये एक फैक्ट्री का रास्ता है। पौड़ियों वाला छोड़ के वो पौड़ियों से ऊपर आते थे, ऊपर से आगे ऊपर होल है, उस होल से वो नीचे, फिर उन्होंने वो दरवाज़ा खोला था। वो छोटी खिड़की सील थी, बड़ा दरवाज़ा खोल के अपना अंदर से जो सामान था कीमती वो निकाल के अपना जो उसका कारोबार चल रहा था। वो देखिए इन चीज़ों पे सर, ये आज हमने फूड अथॉरिटी की टीम को रब्ता किया, इंशाल्लाह अभी अंदर चल के देखते हैं, और वाकई अगर आपकी बात ठीक है और दोबारा हमें ये सारा प्रोसीजर वाकई ऑपरेशनल है इनका, अगर हमें वो मिलता है, बात पता चलती है, तो आज इंशाल्लाह इसके खिलाफ पक्की कार्रवाई होगी। क्योंकि ये हो जाएगा तो बहुत मेहरबानी। इससे पहले आपसे भी बड़े ले आए थे, उन्होंने इसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन कोई चक्कर नहीं है भाई, ये एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद फिर ओपन हो जाता है। और ऐसी स्मेल आप अंदर जाएंगे, अगर आप अंदर खड़े हो जाएंगे तो मैं मेरे से तो यहाँ नहीं खड़ा हुआ जा रहा। ये तो फिर बहुत साफ सुथरा माहौल है, ये तो बहुत साफ। चलिए अंदर चल के मैं देखता हूँ इंशाल्लाह जो भी कार्रवाई होती है। सर ये सामने ये दुकानें हैं, इन दुकानों के अंदर भी माल है। हाँ, ये बाहर जाएंगे तो शटर होंगे, इधर भी माल है, ये भी माल है, अंदर रूमों में भी होगा, इधर तो बहुत ज़्यादा है ना, अंदर आप जाएंगे आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। ज़रूर जी, देखता हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आप अपना फीडबैक ऐसे ही देते रहा करें। थैंक यू जज़ाकल्लाह, बड़े प्यारे आपके माशाल्लाह बच्चे हैं जी। अभी यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फूड अथॉरिटी की टीम भी गालबन यहाँ पे आ गई है, उन्होंने रब्ता कर लिया है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद फूड अथॉरिटी की टीम के साथ यहाँ पे अंदर चल के देखते हैं, अंदर चल के मैं देखने को क्या मिलता है। अच्छा, हमारे कैमरामैन अंजुम शहजाद तो बड़े स्लिम से आदमी हैं, वो यहाँ से नीचे चले गए हैं बासानी। मैं जाने की कोशिश करता हूँ अगर जाया जाता है तो, वैसे मुझे डर ही लगता है, लेकिन कोशिश करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं अगर जाया जाता है तो। ये नहीं बंद हो रहा है, ऐसे ही लेके जाते हैं। अंजुम ये माइक तो गिर ना जाए। अल्लाह, अच्छा जी, ये नीचे आ गए हम। ये एक पानी वाला ड्रम पड़ा हुआ है इधर से नीचे। अंजुम इधर से देखना, नीचे उतरने का रास्ता है। अच्छा, इस तरफ से है रास्ता। इधर नीचे ना शीशे की बोतलें पड़ी हुई हैं। नमक वाले तोड़े, ठीक हो गया।
अच्छा, ये अब मज़ेदार बात क्या है जी, अभी यहाँ से क्यों आना पड़ा है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये है कि ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अंजुम थोड़ा सा घुमाना ज़रा, बहुत स्मेल है। ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है ये गेट बंद है, इस वजह से मैं यहाँ से आना पड़े। और ये इनका वेयर हाउस है। दरवाज़ा खोलें, दरवाजे के अंदर क्या है? ओह हो, अंजुम अंदर से दिखाओ। बहुत ज़्यादा स्मेल है। ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मुझे तो मेरी तबीयत ख़राब होती दिखाई दे रही है फ़िलहाल। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना ज़्यादा गंदगी ड्रम के अंदर ये जो मौजूद है, ये सारा गंदा अचार है। ये वो अचार है जो बाद में पैकिंग्स में, बेहतरीन और शानदार किस्म की पैकिंग्स में पैक होके ये हमारे सारे शहरियों को दिया जाता है। कटा हुआ गंदा गलीज़। अंजुम करीब से ज़रा करना फोकस। वाह, देखते रहें जी। ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जितने ड्रम खोलेंगे अंदर से उतना हमें कोई नया तोहफा देखने को मिलेगा। ये देखें जी, ये देखें क्या, वो हो। और ये सारे ड्रम इसी तरह के हैं। सब ड्रम में, जितने ड्रम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सब में इसी तरह का कोई ना कोई गंदगी गलाजत मौजूद है। और मैं तो, मुझे उलझन हो रही है कि मैं इसको जो हाथ लगा रहा हूँ, इतनी गंदी चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ, मेरे हाथों के साथ इस वक्त कितने जरासीम होंगे, या मेरे पास इस वक्त कितने जरासीम होंगे, जितनी यहाँ पे मक्खियाँ। और उस मक्खियों में जहाँ पे मैं तशरीफ़ ले आया हूँ, ये मेरे पीछे देखिए जी, ये सूरत हाल है अचार बनाने के वेयर हाउस की। यहाँ पे अचार बनता है और कैसी हैरानगी की बात है। मेरे दाएं जानिब देखें जी, अंजुम ये दिखाएं जी। और मैं इस वजह से ज़्यादा आगे नहीं जा रहा कि किसी ड्रम को टच नहीं मैं होना चाह रहा। ये खुल नहीं रहा, ये खुल नहीं रहा, और फिलहाल इसको दोनों हाथ में लगा नहीं सकता कि खुले। एक हाथ में मेरे माइक है और बाकी देखें जी ज़रा क्या सूरत हाल है। और बहुत ज़्यादा स्मेल है, बहुत ज़्यादा गंद है, गंदगी गलाजत है यहाँ पे। और मुझे मेरी अपनी तबीयत फ़िलहाल ख़राब होती दिखाई दे रही है। और ये अचार, इस तरह का अचार, ये बाद में पैकिंग में पैक होकर आपके पास आता है। हमने बड़ा ही गलत सा जो एक काम किया है, जो ये रिस्क लेके जैसे ऊपर से नीचे उतरे हैं। उसकी वजह ये है जी कि यहाँ पे जो मेन दरवाज़ा है वो बंद करके चले गए हैं। ये मेन दरवाज़ा बंद करके यहाँ से ये तशरीफ़ ले गए हैं, लोग चले गए हैं। और उनके भागने की वजह से हमें यहाँ से ऊपर से नीचे आना पड़ा है। वापस भी हम यहीं से जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये अभी उनका मेन गोदाम, मेन वेयर हाउस, मेन स्टोर नहीं है। मेन सामने वाला एरिया है जहाँ पे सारा काम किया जाता है। यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे काम किया जाता है। अंदर मैं नहीं जा सकता, अंदर मैं जाना नहीं चाह रहा। जहाँ मैं सकता हूँ मैं जाना नहीं चाह रहा। अंदर यहीं से अंजुम आपको दिखा देंगे। अंजुम प्लीज़ यहाँ से दिखाने की कोशिश करना ज़रा। ये अंदर जितने ड्रम पड़े हुए हैं, इन तमाम ड्रम्स में इसी तरह का सामान मौजूद है और इससे ज़्यादा गंदी हालत में मौजूद है। मुझे नहीं पता अचार बनाने का हाइजीनिक तरीका क्या होता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये जो तरीका है ये इंसानियत के लिहाज से भी घटिया तरीन तरीका है और ये हाइजीन के लिहाज से भी घटिया तरीन तरीका है अचार बनाने का। और इस तरह का अचार खुद अपने बच्चों को ये खिलाएंगे, ये सवाल इनसे किया जाए। ये ड्रम दिखाना जो, ये अचार के ऊपर है क्या, मौजूद क्या है, ये यहाँ पे फ़िलहाल सबसे ज़्यादा यही फाइंड आउट करना मुश्किल काम है कि अचार के ऊपर मौजूद क्या है। इस तरह का गंदा गलीज़ अचार ये खुद अपने बच्चों को यकीनन नहीं खिलाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो अचार पैक होकर जा रहा है वो पता नहीं आप, मैं, मुझ समेत, हम समेत कितने लोग खाते होंगे। और इससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात ये जो एक शहरी में हम साथ मिले थे, ये भाईजान, इनके मुताबिक उन्होंने बताया छोटे छोटे उनके माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे थे, छोटे छोटे। वो छोटे बच्चे इन्हीं मक्खियों के, इन्हीं बैक्टीरिया के साथ जब वो ये मक्खियाँ जाती होंगी उन बच्चों के पास, उनके पास कितनी बीमारियाँ लेके जाती होंगी, कितने बैक्टीरिया, कितने जर्म्स, कितने जरासीम लेके जाती होंगी, इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। और यहाँ पे मक्खियों की सूरत हाल क्या, मक्खियाँ हैं कितनी, इसका भी अंदाज़ा आप खुद कर लें। ये अचार जहाँ पे भी पैक होके जाता होगा या जहाँ पे भी
जिस तरह भी डिलीवर होता होगा उसके साथ मक्खियाँ नहीं डिलीवर होती होंगी, इस बात की क्या गारंटी है, ये भी किसी के पास यहाँ पे फ़िलहाल गारंटी भी मौजूद नहीं है। और ये जो आम गले सड़े इधर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे कच्चे आम गले सड़े पड़े हैं, ये तो बिल्कुल अचार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ये किस चीज़ का हिस्सा है, ये क्या है, ये मक्खियों का हिस्सा है, ये मक्खियों का घर है। फिलहाल यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अंदर की सारी आपको सिचुएशन दिखा दी है। ये जो कमरा, जी जी हाँ जी, महल्लेदार भी तंग हैं आप सर, इनके हमसाए हैं, तुसी भी तंग हो। अच्छा, ये जो ऊपर भाईजान आपको दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कैमरे में माइक में इनकी आवाज़ आई है या नहीं आई है, वो बता रहे हैं कि मोहल्लेदार भी बहुत ज़्यादा तंग हैं, अहले इलाका भी बहुत ज़्यादा तंग है। ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के इनसे भी बात करते हैं, इलाका से भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इतनी ज़्यादा तंग हैं तो कितने ज़्यादा बासर हैं ये अफराद जिनको यहाँ से आप अपने इलाके से निकाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी, हम वापस चलते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। और ऊपर हम जिस रास्ते से आए थे वहाँ के बजाय ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ड्रम टुट ना जाए डब्बा। बहुत तंग आ, बहुत तंग हो। हाँ जी सर की वजह है कि तुसी कंप्लेन नहीं करते, इथों कढ़न की कोशिश नहीं करते इन्हों? कंप्लेन कई करते इधर आ, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। स्मैल तो मेरी हालत बुरी होगी, मैं तो दोबारा उन्होंने वेखांगा भी नहीं। हाँ जी, कंप्लेन नहीं कोई करते? हाँ जी कंप्लेन बहुत करते हैं पर कोई भी नहीं आता। तो कोशिश नहीं की इलाके के लोगों ने कि इन्हों इतों बाहर कढ़िया जाए? कोशिश बहुत करते, ਉਹਦੀ अपनी जगह है। अच्छा, अपनी जगह? हाँ जी, पर नहीं जाता। नहीं जाता। तो कंप्लेन भी बड़ी की कोई आंदा नहीं? साडी अपनी हवेली है, ਅਸੀਂ बहुत तंग आ। नहीं बिल्कुल इस तरह ही सर, तो जिन्ने जरासीम ने ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। हाँ जी ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ हाँ ਦਿੱਤਾ। जी बहुत कम ख़राब है जी। कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं जी इन्हों का कोई हल निकले, मेहरबानी कोशिश करते हैं जी, अगर इनका कोई हल निकलता है तो यहाँ से चलते हैं वापस जाके नीचे जाके देखते हैं क्या सूरत हाल हमें देखने को मिलती है। अभी जी अदील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदील अहमद साहब फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। अदील भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अदील भाई, ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे फूड अथॉरिटी ने पहले भी कार्रवाई की है, ईद से चंद रोज़ पहले। अहले इलाका ने भी बताया ईद से चंद रोज़ पहले कार्रवाई की है। ऐसे ही भाईजान आप भी बता रहे थे मुझे, आ जाएँ भाईजान ने भी हमें बताया कि फूड अथॉरिटी ईद से कुछ रोज़ पहले यहाँ पे कार्रवाई करके गई है। आपने यहाँ पे कार्रवाई की है। ये अचार जो बन रहा है जिस तरह का, जो यहाँ पे सूरत हाल है आपके इल्म में है सारी? जी बिल्कुल, हमारी टीम ने ही इस पे ऑपरेशन किया था और तकरीबन इनका 4 टन जो है हमने पिकल जो है वो वेस्ट किया था। और फंगल इन्फेस्टेड था, इंसेक्ट्स थे, हाइजीन पुअर हाइजीन इश्यूज़ थे, जिनकी वजह से हमने ये इसको सारे के सारे को डिस्कार्ड किया था। उसके बाद हमने इसको इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद ऑफिस जाके इन्होंने फर्दर टाइम लिया था रेक्टिफिकेशन का। तो अभी ये रेक्टिफिकेशन टाइम पे चल रहा है। इस पे हम ऑलरेडी पूरी कार्रवाई अपनी कर चुके हैं। ठीक हो गया। तो अदील भाई, उस दौरान ये ऑपरेशनल हो सकता है या नहीं हो सकता? इसमें हम देखेंगे कि ये रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। वो जब हम इनका टाइम पूरा होने पे या एप्लीकेशन देने पे हम इनके पास आएंगे तो उस पर हम जज कर लेंगे। अगर तो ये काम कर रहे हुए ऑपरेशनल हुए तो प्रॉपर जो है इन पे उसके मुताबिक चीज़ें देखी जाएंगी। अगर ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन कर रहे हुए तो हम रेक्टिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे कि रेक्टिफाइड इन्होंने चीज़ें कर ली हैं। इधर थोड़ा सा हो जाए, ट्रॉली आ रही है, एक मिनट थोड़ा, ठीक है, ओके जी। या अभी इनको और टाइम देने की ज़रूरत है ताकि ये अपनी चीज़ें PFA के SOPs और PPFR के मुताबिक जो है वो अपनी चीज़ें कर लें बेहतर, तो फिर उसके बाद इनको अलाउ किया जाए। ठीक हो गया। अदील बिजनेस कर रहे हैं, ये तो काम कर रहे हैं, ये तो एक दिन के लिए भी नहीं रुके। ये सील किए में भी अपना काम कर रहे थे, सील हुई थी, ठीक है, आपके बंदे सील करके, उसके बावजूद ऊपर से हॉल है, उधर से उतरे हैं, जैसे भी उतरे हैं सील छोटी खिड़की की है, बड़ी खिड़की खोल के उधर से अपना सामान वगैरह अंदर से निकाला है। ये हमें इलाके वालों ने बताया, मैं उस वक्त लाहौर में नहीं था मौजूद, लेकिन भाई साहब मुझे पता लगा भी ये मामला तो हो रहे हैं। आप आएँ इधर, इलाका आपको पूरी बात बताएगा, सारा इलाका बेफिक्र है आप। सील होने के बावजूद भी वो बिज़नेस कर रहा था, उसका तो एक दिन भी नहीं ज़ाया हुआ बोझ जी। आप कह रहे हैं कि अभी भी वो PF के वो कर रहा है, एहतियाती बिजनेस नहीं कर रहा, वो कर रहा है बिजनेस बोझ।
दूसरी बात ये नहीं, अच्छा वो बिज़नेस वो कह रहे हैं कि हमने उनको थोड़ा सा टाइम दिया, चले वो इन दोनों बातों के अलावा मेन बात जो मुझे मेन इशू लगा है वो अदील भाई ये लगा कि अभी भी जो अंदर सामान मौजूद है जिसके अंदर इंसेक्ट्स भी हैं, जिसके अंदर फंगस लगी हुई है बहुत ज़्यादा, और एक अजीबो गरीब किस्म के कीड़े पहली दफ़ा जो मुझे देखने को मिले हैं उस तरह के जो मौजूद हैं, वो फूड अथॉरिटी ने वेस्ट नहीं किए या अपनी जुरिस्डिक्शन में नहीं लिए, मतलब वो जब्त नहीं इनसे किए, वो उसका क्या होगा? इसमें ये हो सकता है कि उस वक्त जो इनका मटेरियल ठीक पड़ा हुआ वो हमने रख दिया, वो अभी ख़राब हो गया हो। ये रिसेंटली कटिंग हुआ है बहुत सी, मेरे घर के बिल्कुल साथ है, ये भी रिसेंटली जहाँ ये अभी वीडियो बना गए हैं ये भी कटिंग हुआ है कुछ दिन पहले। पूरी इधर टीम बैठी थी इनकी, जब आपकी टीम आई थी तब तो ये घर खाली था। इस चीज़ का तो आपको ही पता है, अगर आपने ऑपरेशन किया है इधर तो ये घर खाली था। अब जाके देखें, आप अंदर देखें कि ये गए हैं, उतर के खुद गए हैं, एक नज़र इनको भी दिखा दें या वीडियो दिखा दें, इनको पता लग जाएगा कि वो खाने के काबिल है, वो क्या सीन है। वो देखें, उसकी स्मेल देखें कैसे बुरे हालात हैं। हम आस-पास वाले घर बहुत ज़्यादा तंग है, ज़रूरत से ज़्यादा तंग है। बिज़नेस करें हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन गंदगी तो ना फैलाए, गंदगी ज़रूरत से ज़्यादा गंदगी फैलाई है बहुत सी। बिज़नेस से हमें कोई इशू नहीं है, इशू है गंदगी। स्मेल देखें, अगर खड़े होकर उधर आप देख लें, इसके जो आप अंदर गए होंगे, इसकी जो मेन वेयर हाउस है, ये तो इसने रेंट पे लिया है ना, उसके अंदर जाके खड़े, इसके मालिक हैं ये? हाँ जी, इसके तो मालिक हैं ये, तो इसीलिए बस यहाँ से जा नहीं रहे ना, आप निकाल पा रहे हैं। तो बस वो क्या करें, वो बात ये है कि इससे पहले भी 50 दफ़ा टीम आई है और वो जो भी मामला था एक हफ्ते बाद फिर ओपन हो जाती है। मामला तो आप समझते हैं बेहतर अच्छे तरीके से। नहीं, ये तो इनके कहने की बात है, वो अपने हिसाब से वो बात कर रहे हैं जिस तरह उनको लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पहले भी इस पे 2-3 दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है, इनका मटेरियल डिस्कार्ड वेस्ट हो चुका है और अभी भी SOPs के मुताबिक हमने देखें चलना है। SOPs के मुताबिक हमने SOPs को वायलेट नहीं करना, आपने अपना PPFR देखना है 18 और SOPs देखनी है। उनके मुताबिक कोई उस पूरा उतर रहा है, वेल एंड गुड, अगर नहीं पूरा उतर रहा तो उसके मुताबिक उस पर एक्शन होगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक हो गया। अदील भाई, इस पे अब क्या एक्शन होगा? जो अभी मैं खुद मतलब देख के आया हूँ, आपको भी दिखाता हूँ अभी, जो अभी वाकई सामान ख़राब पड़ा हुआ है, कीड़े हैं जिसके अंदर फंगस लगी हुई है, जिसको उनका उस सामान का अब क्या होगा? ख़राब सामान डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, अभी काबिल यूज़ नहीं है उसको, उसके मुताबिक हम जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे, वेस्ट कर देंगे। अदील भाई, वो उसके डिस्कार्ड की तरफ चलते हैं। जी भाई, आप कुछ कहने लगे थे? मैं ये कहने लगा था कि इन्होंने जब सील किया है इससे पहले, ठीक है ना, तो उस वक्त इन्होंने ये बोला है कि हमारी टीम 15 दिन बाद फिर आएगी, ठीक है, वो आकर चेक करेगी। अगर इसका यही सिस्टम हुआ, यही गंदगी हुई, तो फिर हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और इसको हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अच्छा, वो सर लेकिन ये ऐसा होना नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन ये बोला गया था। मैं कहा चले ठीक हो गया। तो अब आप ईद से पहले की बात है, एक हफ़्ता, अब ईद के बाद आप देख लें खुद कितने दिन गुजर गए हैं। तो अब ये टीम आई है और गंदगी आपने खुद देख ली है। जी दिल भाई, नहीं, बात सिंपल सी है। मैं तो वही कहूँगा कि हमने बेसिकली चीज़ें रेक्टिफाई करवानी हैं। चीज़ें पहले भी ऐसे होता है कि हम डिफरेंट प्रेमिसेस पे जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, लोकल भी होती हैं, दूसरी भी होती हैं, उनको उसके मुताबिक किया जाता है। बिज़नेस करने का राइट हम किसी से ले नहीं सकते, हम सिर्फ जो है उसको बेहतर करवा सकते हैं, उसको बेहतर करवाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कहीं पर वो अडल्ट्रेशन या इस तरह का कोई मामला होता है, उस पर फिर हम पूरे का पूरा उनका मशीनरी और सामान भी ले आते हैं, फिर वो वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये SOPs की वायलेशन है, तो उसको उसके मुताबिक हम देख रहे हैं। ठीक है दिल भाई, अब इसको डिस्कार्ड करने की तरफ चलें। जो सामान अभी मौजूद है आपको दिखाऊं? जी, इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं जी। अब सामान जो हम देख के हैं, अदील साहब को भी दिखाते हैं चल के, और देखते हैं जी उसको डिस्कार्ड फूड अथॉरिटी अभी किस तरह से करते हैं। अच्छा, ये जहाँ पे फैक्ट्री मौजूद है, ये अदील भाई भी हमारे साथ मौजूद है, वहाँ पर बाहर ये सूरत हाल है, अंदर क्या सूरत हाल होगी इसका भी अंदाज़ा एक तो आप खुद कर लें। दूसरा दिखाते हैं जी वो दुकानें, वो जगह, वो फैक्ट्री आपको बाहरी साइड से, जहाँ पे जिसके पहले हम अंदर जाके मौजूद थे और आपको हमने दिखाया था। ये वो दुकानें, 2 शटर हैं जो अंदर वाली साइड से आपको दिखाया था, जो बताया था कि बाहर वाली साइड भी दुकानें हैं। ये वो छोटा गेट है अंजुम, ये वो छोटा गेट है जी जो आपको दिखाया था, और ये मेरे बाएँ जानिब जो आपको देखने को मिल रही है ये फैक्ट्री है। अच्छा, ये 2 बातें जो है ना अदील भाई यहाँ पे, एक तो ये देख सकते हैं आपकी बिजली चल रही है, लाइट चल रही है, तो ये वाकई ऑपरेशनल है शहरियों के मुताबिक। और दूसरा ये कि ये देखें, ये वो डिस्पोज हो रहा है, गटर पानी चलने की आवाज़ आ रही है इनके। ये साथ वालों का लग रहा है मुझे, क्योंकि ये होती दूसरी तरफ है। अच्छा, नहीं, ये दिल में मुझे लग रहा है इन्हीं का है। वो देखें उनके घर के सामने से गटर आ रहा है। चेक कर लेते हैं इसको, चेक कर लें, इन्हीं का ही है, चेक कर लेते हैं। अंदर हैं बंदे? इधर आओ ना, इधर आओ, इन्नी दूरों ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ की आनी है, इधर आओ, नेड़े आओ थोड़ा, आजो इधर आजो। हाँ जी यार, अंदर काम करन दे ने, सुबह 9 बजे लगे ही, अंदर ही ने सारे, अंदर ही हैं सारे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, 2 ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ। नहीं वो बीबियां भी उत्ते काम करन दी, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। 5-6 बीबियां। अच्छा,
अच्छा जी, बहुत हैरानगी की, मायूसी की और परेशानी की बात आज के प्रोग्राम में हमने भी नोटिस की है। ज़ाहिर है आप भी प्रोग्राम देख रहे थे, आपने भी ये बात नोटिस की होगी, आपके बिल में आई होगी। वो हैरानगी की बात ये है कि फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ मौजूद थी, फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे। उनको बारहा कार्रवाई का कहा जा रहा था, उनको कार्रवाई का अहले इलाका भी बता रहे थे, मैं भी कह रहा था, लेकिन वो कार्रवाई नहीं की गई। कहा गया कि उनका सामान डिस्पोज ऑफ कर देंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ तो ये कह दिया गया कि हाँ जी हम टीम का इंतज़ार कर रहे हैं, टीम आएगी और डिस्पोज ऑफ कर देगी। हो सकता है कल आए, हो सकता है आज आए, अभी कुछ पता नहीं है, कल डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, हमें पता नहीं है उनको कितना टाइम दिया गया था। यानी कि उनकी तरफ से मौक़िफ़ ये दिया गया कि इनको हमने लिमिटेड टाइम दिया हुआ है, फूड अथॉरिटी ने, उस लिमिटेड टाइम के बाद हम इनके ख़िलाफ़ दूसरी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हम आपके SOPs का एहतराम करते हैं, लेकिन इन SOPs के मुताबिक आपने लिमिटेड टाइम उनको दे दिया, उस लिमिटेड टाइम के बाद आप अपनी दूसरी कार्रवाई करेंगे। उस लिमिटेड टाइम में जितना सामान ये बनाएंगे, उस लिमिटेड टाइम में जितना आचार यहाँ पे बनेगा, जितनी गंदगी होगी, वो जितना सामान मार्केट में जाएगा, उस मार्केट में जाने से जितने ज़्यादा लोग बीमार होंगे, जितने ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके शायद पता नहीं कितने अपनी जान की बाजी भी हार जाएँ और बीमार हों, उन तमाम लोगों का क्या कसूर है? या फिर ये जो सारा काम चलेगा उस लिमिटेड टाइम में, ये जितना सामान मार्केट में जाएगा और जितना और बनता जाएगा, इसका कसूरवार कौन है? इसका ज़िम्मेदार कौन बनेगा? ये फूड अथॉरिटी कल को ज़िम्मेदार नहीं बनेगी, इसका मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है। जो फूड अथॉरिटी आज मौके पे जाके दिखा के, वैसे तो इनको खुद जाना चाहिए, लेकिन मैंने जाके दिखाया है, हमने जाके दिखाया है, अहले इलाका ने दिखाया है, जाके देख के भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वो कल को जब इसी आचार से लोगों की तबीयतें ख़राब होंगी, लोगों की जानें जाएंगी, उसके बाद ये ज़िम्मेदारी लेंगे, उसकी बेशक नहीं लेंगे। लेकिन फूड अथॉरिटी के SOPs हैं जी कि अगर हमने एक दफ़ा कार्रवाई कर दी है, उनको लिमिटेड टाइम दे दिया, तो उससे पहले हम नहीं जा सकते हैं, और उस दौरान वो वहाँ पे जो मर्ज़ी बनाते रहें। बहुत ही अफसोसनाक बात, बहुत ही शर्मिंदगी की बात और मायूसी की बात। फूड अथॉरिटी ने आज हमें आज के शो में मायूस किया इस बात को लेके। आपने भी यकीनन नोट किया होगा, हमने भी नोट किया, लेकिन उम्मीद करते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसका भी हल कोई ना कोई निकालेगा। नहीं तो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि मोहसिन साहब, फूड अथॉरिटी का महकमा और काम इस तरह के, ज़िम्मेदार कौन होगा जो सामान इस लिमिटेड टाइम में, इनके दिए गए टाइम में बाहर चला जाएगा? खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। हमारा काम था रिपोर्ट करना, दिखाना, वो हमने दिखाया है। खुद मैं ना डिस्पोज ऑफ कर सकता था, ना मैं उनके प्रेमिसेस सील कर सकता। अगर वो मैं कर सकता था यकीनन आज ये भी करके जाता। हमारा काम था दिखाना, हमारा काम था रिपोर्ट करना, वो हमने कर दिया है। आज हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।